participation in a very special day. Today, we mark the second death anniversary of a great soul, great environmentalist, great leader of Chipko movement, Shri Sunderlal Bahuguna ji. And today we will going to discuss about his work, his legacy, and his continuous sadhana towards protection and conservation of trees and environment. Let us start the session with a beautiful song called Gaon Chorab Nahi, Desh Chorab Nahi.
Thank you so much for your kind attention. I, Randhir Kumar Gautam, on behalf of Swadhyay Sachak, Vishwaneedam Center for Asian Blossoming, welcome, distinguished friend, respected participant, both on Zoom platform and Facebook platform. I welcome Shri Ram Mohan Raiji, General Secretary, Gandhian Global Family. We welcome Professor Ananta Kumar Giri from Madras Development Institute, Professor Jayant Singh Tomar from IITM University Gwalior, Dr. Suresh Khairnar ji, Shri Kaushal Kishore ji, Minati Pradhan ji, Shivani Bhatt ji, and I can see so many eminent personalities here, Professor Gyan Guloi, Professor David Black Wills, Professor Mohanty, Professor Nagraj Anand, Professor David Albert, Professor Mohanty, Professor Rakesh, and all friends co-present here. Today is a very special day. Today is a second death anniversary of a great soul, a great environmentalist, a great leader who dedicated his life for the sadhana struggles and quest for making this world more sustainable. A man who inculcated democratic consciousness, environmental consciousness among the masses. Let me also give a kind of brief introduction to our circle called Swadhyay Sahchakra, Circle of Co-Learning and Mutual Study. It is an initiative of studying, learning together culture, societies, and the world. Friends associated with this are eager to walk and mediate with new horizons of thinking and new movements of social cultural change at work in our contemporary world. We study seekers such as Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi, Chittaranjan Das, a creative soul from Odisha, and many others from around the world. We invite peoples from different fields of life to share their knowledge, sadhana, and struggles for creating this world more beautiful, more just, and more community-centric. So today is a day of, in a sense, we are going to talk about a man who dedicated all his life for the beauty of nature. As we know, Gandhi says, God made the village and man made the city. This was a song we just played. It gives a sense of understanding about the current, present crisis that we are all seeing in our everyday life, globally. So today, the topic that we have chosen is Chipko movement, Sunderlal Bahuguna, and the challenges of contemporary world. So we'll invite today's
we'll invite Professor Ananta Kumar Giri to give a background of the topic, and then we'll invite respected speakers. Ananta bhai, over to you. Thank you, dear Randhir, and all friends co-present, Dr. Khairnar, Minati, Professor Tomar, and David. And it is a joy for me to be with you from Guwahati. And I am coming from Arunachal Pradesh and Guwahati in the northeast of India. And the struggle that Chipko movement embodied, it would be very interesting to always ask a retrospective question. What would have happened to Uttarakhand and the trees and the mountain if there was no Chipko movement? And let us, as we feel the immortal presence of Sunderlal Bahuguna, our dear Sunderlal ji today, we also remember today Rajiv Gandhi, and this is the day of his martyrdom. And one connection is, and this is what Sunderlal ji had told me, that Rajiv Gandhi's mother, Prime Minister Indira Gandhi, had taken a personal interest so that the law could be enacted, that the protection of the forest in the Uttarakhand could be enacted. So these are very complex histories that we should not forget. Chipko movement was one of the early grassroots environmental movement, and along with the song that we played today, Gaon Chhodbo Nahi, Jungle Chhodbo Nahi, let us also sing together these songs that emerged from the Chipko movement. And I invite us to sing it together. And even if you do not unmute yourself, we can sing together. And it goes like this. Kya hai jungle ke upkar, matti pani aur bayar, matti pani aur bayar, o hai jiban ke adhar. And as Sunderlal ji was explaining this to me, the meaning of this song, and I remember my meeting with him in his ashram, Silihara ashram, Parvatya Navajiban Mandal Silihara. And in 1987, in the summer, I'm getting down from the nearest bus station with my wife, and and I am putting my everything suitcase on my head, and we are coming to the ashram, and Sunderlal ji and his dear wife, who is still with us, Bimla Behen, and we spent a few days together. And Sunderlal ji was telling me that the significance of this poem is a foundational critique of scientific forestry, which was used as a colonizing instrument to colonize nature, and not only colonize nature, but kind of disinherit the traditional relationship and huge right that people had with the forest. So Ramachandra Guha, reflecting on that in 1983, before his book, The Unquaid Wood came in 1989, he writes, the history of conflict and struggle can be seen essentially as emanating from alternative conceptions of property rights and obligations. And today, as we are with Sunderlal ji, and also with Rajiv Gandhi, and these two things we have to link beyond these limited notions of power politics, is that this whole idea of the forest is that it is the forest which gives us mati pini or air as a gift, and our peace is related to that, and the destruction of the forest is the destruction of life. And Chipko movement, it embodied that. And the whole multidimensional initiative of Chipko, like Chipko, began in the village of Rani, near Josimot. I still remember the late
afternoon, early evening when I'm getting down from the bus station, near Reni, and Gaura Devi's son, he kindly receives me, and I spent one night with Gaura Devi's family. Gaura Devi is this courageous soul. When the villagers from the men folk from his village were taken away in a false court case, Gaura Devi asked his fellow women. She asked, "Are we so weak that we cannot protect our trees without the men?" And she challenged her sisters. He said, "Come, hum pahle chipak jayenge." And then they asked the ex-men, "First cut ourselves and then the trees." And as Sunderlal ji was telling me the significance of this act, Sunderlal ji used to always relate to the story of the Bisnois, where many 300 plus Bisnois laid their lives just to protect the trees. Therefore, on this day of martyrdom, which is also the martyrdom of Rajiv Gandhi, who in his own way strove for peace, for example. Today, the challenge of war in Ukraine and others, the whole question of nuclear disarmament, but the whole question of disarmament and peace is also linked to, changing our violent relationship with nature. As Bandana Shiva, who is also a product of Chipko movement, and she writes in her book, Staying Alive. So violence against nature and violence against women and violence gone against the humankind, we would have to address this together. How do we do that? Sundarlalji used to say, and as he took the Padayatra, as you know, from Bengal to Ganges, the whole Ganga Yatra, he used to challenge us on the way that today the scientists and the poets and the journalists have to come together. So it is a kind of a trigonometry of creativity and resistance. So science is a different kind of life science, not just a science for profit. And poets like Ghanshyam, there was a great poet who wrote songs about Chipko movement. His name is Ghanshyamji. And the journalist Sunderlal Bahuguna himself was a creative journalist. Today we see what has happened to our media sphere. There is an interesting name. I do not want to utter it without meaning any disrespect to anybody, but we know where are the our truth-loving journalists who can report about the destruction of the forest. As the famous song of the great American singer, "Where have all the flowers gone? Where have all the journalists gone? Where have all the poets gone? Where have all the scientists gone?" And Sunderlalji was also telling me the great man from Britain called Richard St. Barbabecker, who is considered the tree man of the world. So on this day today, with Sunderlalji, and Sunderlalji, when I met him, he began with a very critical question. He said that, "Have you come to do a post-mortem of the Chipko movement?" He says that it is not enough just to do a history of Chipko movement. And he challenged me to come look at the contemporary struggle. Then I met him in Dehradun, where near Dehradun there was a mining was getting done, and there was a resistance against the mine, and I joined him and we met there. But before that, he arranged for me to put my bags in an ashram in Rishikesh. And Sunderlalji was also deeply connected to a spiritual sadhana. And it is this spiritual sadhana, so a joining of spiritual sadhana, social activism, and a sadhana with nature that Sunderlal ji embodies. And it is this immortal spirit, vision, and practice. We join him, but we join him as he challenged me, not in a post-mortem sense, but in a sense of what Foucault would call a critical ontology of the present. So how do we travel with both Sunderlalji and also
be grateful to Rajiv Gandhi on his day of martyrdom, and how do we embody a critical ontology of the present, critiquing many structures of domination and destruction of life. Thank you. Thank you, Ananta bhai, for giving a understanding about the kind of orientation and kind of praxis that Sunderlal Bahuguna ji had towards environmental, towards nature, and towards sustainable development. So, thank you so much for sharing a personal journey, because personal interaction matters more than intellectual exposure of any person, particularly when we understand the realm of economic or environmental movement. Their practice makes more sense than the theory. Therefore, activist orientation is more important than the expert orientation. And that has a whole legacy of, we have the freedom movement and also environmental movement, I would say. मैं अब अनुरोध करना चाहूँगा प्रोफेसर जयंत तोमर जी से। प्रोफेसर जयंत तोमर जी मीडिया स्टडीज के जाने माने बुद्धिजीवी हैं और गांधीन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म के मार्गदर्शन में अभी IITM यूनिवर्सिटी में चल रहा है, और पर्यावरण आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन से उनकी गहरी पहचान रही है। तो मैं जयंत तोमर जी से अनुरोध करूंगा कि वो 5 से 8 मिनट में अपनी बातों को रखें। जी बहुत धन्यवाद श्री रणधीर गौतम जी। हमने बहुत ध्यान से प्रोफेसर अनंत गिरी जी को सुना, और जो बात आपने कही कि व्यक्तिगत जो वार्तालाप है, व्यक्तिगत जो संबंध है किसी विभूति के साथ में, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय आपकी मेधा की। तो इसलिए मैं अनंत गिरी जी के अनुभव के सामने तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत कम शब्दों में अगर हम बात करें कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को यदि याद करें, निश्चित रूप से भारत में जो पर्यावरण संबंधी आंदोलन है, उस दिशा में वो एक शुरुआती दौर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है, और उसने भारत की पर्यावरणीय चेतना को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। ये हम सब जानते हैं। इस बात को लेकर विवाद हो सकते हैं कि उसके नेतृत्व किन किन ने संभाला। गौरा देवी का जिक्र किया प्रोफेसर अनंत गिरी जी ने, और गौरा देवी की तरह ऐसे अनेक महिलाएं थी, अनाम गुमनाम, जिनको हम नहीं जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका जो साहस है वो उस देश के किसी भी बड़े से बड़े आदमी के साहस से बड़ा है, क्योंकि वो सब पहाड़ों पर हुए इस आंदोलन, पर्यावरण संबंधी आंदोलन के केंद्र में वो सब लोग रहे। रामचंद्र गुहा की किताब अनक्वाइट वुड्स का उल्लेख प्रोफेसर अनंत गिरी जी ने किया है, और वहां से हम मान सकते हैं कि स्टॉकहोम का जो सम्मेलन पर्यावरण का हुआ, और भारत में उसी के समानांतर पर्यावरणीय चेतना निश्चित रूप से उससे पहले रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें तो वहां से एक प्रस्थान बिंदु हम इसको मान सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट को। ये अलग बात है कि अमिता देवी ने जो खेजड़ी के जंगलों को उजाड़ने से बचने के लिए जो 250 साल पहले आंदोलन किया था, किशोरी समाज की महिला थी, और ऐसे अनेक उदाहरण हमें भारतीय इतिहास में मिल जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो हमारी संस्कृति को अरण्य की संस्कृति कहा था, कि हमारी समूची जो संस्कृति है वो वनों की संस्कृति है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हम वनों के साथ हमने अन्याय किया है, और उस दिशा में प्रोफेसर अनंत गिरी जी ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम निरंतर अपने प्रकृति के प्रति हिंसक होते जा रहे हैं। हमें वो याद आता है कि किस तरह से अनुपम मिश्र पहाड़ों पर पहुंचे थे, चंडी प्रसाद जी उनके संपर्क में आए, दिनमान में रघुवीर सहाय संपादक थे, उनकी रिपोर्ट अनुपम जी के सहारे से छपना शुरू हुआ, और सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, इन सबका जो एक साझा जो एक प्रयास था,
उसने किस तरह से भारतीय समाज में और वैश्विक समाज में पर्यावरण चेतना पैदा की। लेकिन हम लोग यहाँ पे चुनौतियों की भी चर्चा बहुत संक्षेप में कर रहे हैं। जो बात प्रोफेसर अमित ने कही कि कवि, वैज्ञानिक और पत्रकार ये सब एक साथ आए, तो आप देखिए कि उस मूवमेंट में 1972 के समय में पत्रकार भी साथ में है, उसमें पत्रकार, कवि, लेखक, वैज्ञानिक सब एक साथ साथ में है। हमारे देश का संकट ये है कि हम लोग बोल तो काफी रहे हैं, लेकिन काम धरातल तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। चाहे वो हसदेव अभ्यारण्य की बात हो, चाहे बक्सवाहा के जंगल की बात हो, मद्रेस के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, छोटे बांधों की जो बात चली थी, लड़ाई चली थी टिहरी डैम की, और वहां से लेके नर्मदा बांध की, उस सब में हम सब ने मुंह की ही खाई है। तो इसे ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से सभी जगह छोटे छोटे आंदोलन जहां जहां चल रहे, जिसको ग्रास रूट आंदोलन कहें, उन सबके साथ खड़े होने की हम सबको जरूरत है। एक और आखिरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भारतीय समाज को, भारतीय नागरिक समुदाय को ये समझाना बहुत जरूरी है कि समुदाय और समाज राज्य से बड़ा है। महात्मा गांधी अगर होते तो निश्चित रूप से वो समाज के साथ ही खड़े होते। वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप हो। तो समुदाय के साथ हम किस तरह से खड़े हों, समुदाय को किस तरह से मजबूत करें। और जो बात प्रोफेसर अमित गिरी ने कही कि गौरा देवी ने कहा कि क्या हम सब इतने कमजोर हैं कि पुरुषों के साथ के बगैर इस आंदोलन को सफल नहीं बना सकते। तो ये आत्मविश्वास किस तरह से भारत के ग्रामीण समुदाय में और भारत के जिसे हम वंचित समुदाय कहते हैं, उससे किस तरह से हम मानसिक रूप से सक्षम और समर्थ बना सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। यहाँ पर इतने ही शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः सुंदरलाल बहुगुणा जी को नमन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जयंत तोमर जी। ये बहुत गहरा आयाम आपने लेके सामने आया कि कैसे एक मूवमेंट कई सारे साधकों से के समर्पण से वो फलीभूत होता है। महिलाओं के द्वारा शुरुआती लड़ाई की शुरुआत, फिर उसको नर्चर किया गया सुंदरलाल जी के द्वारा, और उसका प्रसार प्रसार पूरे भारतवर्ष में अनुपम मिश्र के साधना के द्वारा हुआ। तो ये दर्शाता है कि हम सभी को कई सारे तत्वों को एक साथ किसी भी आंदोलन को सफल करने में जो भूमिका होती है उसको समझना होगा। और आज जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, और तो बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा इस समस्या के समाधान के लिए। तो मैं सुरेश खैरनार जी को निवेदन करना चाहूंगा। डॉक्टर खैरनार कई मायनों में कई सारे आंदोलन से वो जुड़े रहे हैं, और खासकर सुंदरलाल बहुगुणा के साथ उनका ना एक पर्सनल रिलेशन रहा है। तो मैं खैरनार जी से निवेदन करूंगा कि वो 5 से 10 मिनट में अपने बात को प्रस्तुत करें। जी। सबसे पहले सुंदरलाल जी को उनके दूसरे पुण्य स्मरण दिवस के बहाने उनकी स्मृति को मैं विनम्र अभिवादन करूंगा। आवाज आ रही? हेलो जी, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, तो सुंदरलाल जी चिपको आंदोलन के एक तरह से एम्बेसडर जैसे बन गए थे। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जैसे कहा कि ये बेसिकली उत्तराखंड की महिलाओं का आंदोलन रहा। आजादी के 25 साल के सफर के बाद में, और सफर मतलब अंग्रेजी का भी और हिंदी का भी, उर्दू का भी, और वो जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का उल्लेख किया गया, उसके बाद से हमारे देश में विभिन्न आंदोलनों की एक तरह से शुरुआत हुई। हालांकि आदिवासी अपने खुद के जंगलों को बचाने के लिए
100-200 साल पहले से उनका अपना एक अलग लड़ाई का इतिहास है, वो आज हमारा विषय नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से चिपको आंदोलन ही आज का विषय होने के कारण मैं पहले ये रेखांकित कर दूं कि ये मूलतः उत्तराखंड की महिलाओं के दिमाग की उपज है। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा पेड़ तोड़े जाने के समय 74-73 की दौर की बात है, ये लगभग 50 साल पहले आज से, उन्होंने पेड़ों को जा जाकर जिसको चिपकना बोलते हैं हिंदी में, या हम एक दूसरे को जैसे गले लगाते हैं वैसे पेड़ों को उन्होंने घेरना शुरू किया। तो पेड़ों को तोड़ने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर के लोग होते थे वो असहाय हो जाते थे, क्योंकि उनकी भी तोड़ने की जो हाइट थी पेड़ को, वो जहां पर आवृत्ति लपेटती थी उसी जगह से होती थी, तो वो हेल्पलेस हो जाते थे। और कुछ कुछ जगहों पर तो उनके तोड़ने के हथियार भी महिलाओं ने जब्त किए, तो बाद में भले वापस किए होंगे। लेकिन ये एक बहुत यूनिक उत्तराखंड की महिलाओं ने अपनी प्रकृति को बचाने के लिए शुरू किया हुआ एक ऐसा आंदोलन है जिसको चिपको आंदोलन के तौर पे आज विश्व में जाना जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा, चांडी प्रसाद भट्ट, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को थोड़ा हिमालय के भी बाहर, उत्तराखंड के भी बाहर फैलाने में कोशिश की, जिसमें एक नाम आज जिनका पुण्य स्मरण दिवस है उनका भी है। आज वो हमारे बीच में से जाकर 2 साल हो रहे हैं। लेकिन आज ही के अखबारों में खबर है, जिस उत्तराखंड के लिए सुंदरलाल जी ने अपनी जिंदगी खपा दी और भी कई सारे लोग उसमें शहीद हुए, अभी भी कुछ लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन आज ही खबर है कि जो हमारे वहाँ के जो तीर्थ क्षेत्र है जिसको 4 धाम बोलते, उनको जोड़ने के लिए या उनके यात्रा के लिए हेलीकॉप्टरों की सर्विस की जो खेपे, जो कभी 1-2 होती थी, अब वो हर 5 मिनट में होने की आज के इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज की खबर है। और उसके बाद जो ध्वनि, उसके बाद में जो हेलीकॉप्टर के पंखों से जो भी आवाज होगी, हवा तैयार होगी, और भी दुनिया भर के बहुत कुछ। अब उसके लिए हेलीपैड भी बनाने पड़ेंगे। अभी तो 1 या 2 ही हेलीपैड है, अब इसकी संख्या शायद 9-10 तक जाने की बात है। और सबसे दुखद बात, हर 5 मिनट में, और वो 4 धामों को जोड़ने के लिए जो सो कॉल्ड कॉरिडोर वाली जो बात कर रहे, वर्तमान सरकार धर्म को राजनीति में इस्तेमाल तो करती है वोटों के लिए, लेकिन 4 धामों को भी धर्म के नाम पर जोड़ने के नाम पर हिमालय के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि ये सभी को पता है कि हिमालय विश्व का सबसे तरुण पहाड़ों में, भले उसको हजारों साल पुराना कहा जाता हो, भले कैलाश पर्वत, शंकर और क्या क्या ऋषि मुनि के नाम ले जाते होंगे, लेकिन विश्व के पहाड़ों की तुलना में हिमालय ये सबसे तरुण पहाड़ है और उसमें आज भी मूवमेंट जारी है। भूकंपग्रस्त क्षेत्र है, दुनिया भर के भूस्खलन के किस्से हम सुनते रहते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ का हादसा कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। और अब ये जिस ढंग का विकास का जो गतिशीलता वर्तमान सरकार ने जो बना के रख दी, मुख्य रूप से रस्तों के नाम पे, और हिमालय में जिस ढंग से रास्ते बनाने का मैंने कश्मीर में देखा, हिमाचल प्रदेश में देखा, उत्तराखंड में देख रहा हूँ, और नॉर्थ ईस्ट, सब तरफ पहाड़ों को खोद खोद कर, तोड़ तोड़ कर ये जो बनाने का जो पूरा तथाकथित विकास के नाम पे जो पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत गंभीर बात है। एक तरफ हम आज़ादी का 75 साल का जश्न मना रहे, दूसरी तरफ हम आने वाले 25 साल के बाद में जब 100 साल करेंगे तो उसको सुवर्ण काल भी बोल रहे। लेकिन उस सुवर्ण काल में जाने के लिए पहले पर्यावरण के साथ में वर्तमान सरकार जिस बेरहमी से जिसका बिल्कुल विचार न करते हुए, जो कि हमारे देश का पर्यावरण मंत्रालय भी है, हमारे देश का ग्रीन ट्राइब्यूनल भी है, हमारे देश के बहुत सारे उससे संबंधित विभाग भी है, जो उस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के बाद निर्माण करने पड़े थे कंपल्सन के तहत मिसेस गांधी के समय। लेकिन वर्तमान तारीख में
जिस ढंग से महात्मा गांधी की भाषा में आंधी दौड़ या पागल दौड़ जो उन्होंने 1909 के हिंद स्वराज्य की किताब में इसके बाकायदा आज से लगभग 114-15 साल पहले महात्मा गांधी ने ये सब वार्निंग्स दी थी कि मनुष्य का, वो तो सिर्फ इंग्लैंड का औद्योगिक विकास देखने के बाद कम से कम आज से 100-125 साल पहले की, लेकिन उसके बाद में कितना पानी बह गया पूरे विश्व की नदियों में और हमारे अपने भी देश के, और उसमें मुख्य रूप से सुंदरलाल बहुगुणा जी के स्मृति में हम लोग बात कर रहे। जब वो मेरे यहाँ आते थे कलकत्ता में और हमारे यहाँ ठहरते थे, तब मैंने उनको कहा कि सिर्फ चिपको आंदोलन या हिमालय बचाओ ऐसा सांकेतिक न करते हुए इसको बहुत व्यापक स्तर पे हमको बढ़ाना होगा। उस समय वो गंगा वाली मुहिम लेकर आए थे, एक साइकिल यात्रा वहां से गंगा के उद्गम स्थल से गंगा सागर तक, उस समय हमारे यहाँ ठहरे थे वो कलकत्ता में। तब मैंने उनको कहा था कि क्यों ना हम लोग हिमालय बचाओ मुहिम करें, क्योंकि सवाल पूरे हिमालय पहाड़ के साथ का है, जिसमें नेपाल भी है, जिसमें तिब्बत भी है, जिसमें चीन भी है और जिसमें हमारे अफगानिस्तान से लेके और भी अगल बगल के देश है, पीओके है, पाकिस्तान है, सब तरह का पूरा उपमहाद्वीप जो है हमारा, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है, उसका पर्यावरण का दारोमदार पूरा हिमालय के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारी कई नदियों को उद्गम भी हिमालय से है और हिमालय के साथ जो कुछ चल रहा है और मुख्य रूप से पेड़ों की कटाई, जिसका आज चिपको आंदोलन टाइटल से हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें ये जो छेड़खानी हो रही है और बहुत तेज गति से हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मुझे लैंसडाउन जाने का मौका मिला था, महात्मा गांधी जी के ऊपर किसी कॉलेज में बोलना था और मैंने देखा वहां पर लैंसडाउन के रास्ते भर में पेड़ों की कटाई का और पहाड़ों को पूरा नंगा करने का जो स्पीड मैंने देखा था, तो मुझे लगा कि आने वाले दिनों में ये जो भी दिख रहे थोड़े बहुत हरियाली वाले पेड़ वो भी नहीं दिखेंगे और पानी के लिए औरतें दर दर भटक रही, जलावन के लिए भटक रही। ये अगर हिमालय के साथ रहने वाले लोगों का अगर दिनक्रम हो गया है तो उसी हिमालय का पूरे देश के ऊपर, पूरे हमारे उपमहाद्वीप के ऊपर असर पड़ता है पर्यावरणीय। तो इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा जी के स्मरण में आज हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हिमालय के लिए हिमालय बचाओ, ये उनके स्मरण में आगे चल के हम लोगों ने सभी ने मिलकर, इसमें किसी राजनीति का, किसी धर्म का, किसी विशिष्ट इज्म की भी बात नहीं है, ये पूरा मानव जाति के अस्तित्व का सवाल है और हिमालय बचेगा तो शायद हमारा इस उपमहाद्वीप का, मानव जाति का भी अस्तित्व बचेगा। तो इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति को विनम्र प्रणाम करते हुए मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग उनकी स्मृति में हिमालय बचाओ आंदोलन की तरफ मुखातिब होके पूरा आगे का हमारा दिशा जो है चिपको आंदोलन के लेकर, वो उस ढंग से होना चाहिए। बहुत धन्यवाद मुझे आज इस वेबिनार में बुलाने के लिए और सुंदरलाल बहुगुणा जी के प्रति विनम्र अभिवादन प्रकट करने का मौका दिया। इसलिए मैं दोबारा आप सबको धन्यवाद देके रुकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश खैरनार जी, बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से हिमालय बचाओ आंदोलन की बुनियाद को हम लोगों को आपने समझाया और उस दिशा में सुंदरलाल बहुगुणा के उस अधूरे सपने को भी हम लोगों को आपने रियलाइज कराया। सुंदरलाल बहुगुणा कई मायनों में अलग किस्म के पर्यावरण आंदोलनकारी थे, क्योंकि क्या होता है यूजुअली पर्यावरण आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ कि वो किसी एक पक्ष के होते हैं। जैसे जल के संकट के ऊपर उनका स्पेशलाइजेशन होता है, या उनका स्पेशलाइजेशन ट्रीज के ऊपर होता है, या वायु प्रदूषण के ऊपर होता है। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा कई मायनों में हर एक पक्ष, गंगा बचाओ से भी वो जुड़े रहे, पेड़ बचाओ से भी जुड़े रहे, टिहरी बांध से भी जुड़े रहे। तो उनके इस व्यापक आयाम को भी समझने की जरूरत है और उससे सूत्र प्राप्त करने की भी जरूरत है।
आज के पर्यावरण आंदोलन का. I request David Albert to also share some of his reflections. David Albert, can you Yes. kindly? Yes, please. Thank you. So I first knew Sunderlal and Shivani Bhatt back in 1977, which was actually on my first trip to India. And I visited them both at their homes and actually did some work building retaining walls, protecting trees from the mountain cows. My wife and I were there, and that was work we did for 2 weeks. I think it's important, and I actually wrote a little note that was probably inscrutable in the chat. In all my discussions with Sunderlal Bahuguna, I don't think I ever heard him ever supporting the idea of sustainable development, ever. He knew that the people needed to be able to eat, to have a clean environment, to have education for their children, to have access to decent health care. But he saw these as human rights. He did not look toward a future of a sustainable development for India. He didn't really believe in the idea of development per se. He believed that if people left to their own devices as a community could actually be able to take care of their own needs, to be self-determining, to be able to recognize within each other and within the community the ability to care for each other in ways that did not require development. He believed in spiritual development. He believed that there was a kind of development which led, as Gandhi thought, to the fullest development of the human person and the human personality. And that was what was important to him, not some strange idea of development, which, as far as I know, he rejected. I think that's an important reflection as we go forward. We need to be in the business of protecting people's human rights, including the right to a clean and safe and sustainable environment today. We do not need to look to a developmental future. We need to talk about what it is that people need today and how we can help make it possible for people to build that for themselves. And that would be my main reflection. The interesting thing was I actually collected songs of Gandhian Sailani in 1977, published them, and a friend of mine, Sarah Pradhan, we had them translated into English, and she wrote songs about them. And when Sunderlalji visited the University of Massachusetts in 1981, he was introduced by Sarah Pradhan singing the songs of the Chipko movement. He had no idea that it had already traveled so far to the United States that people were singing the songs of the Chipko movement. Now, and of course, knowledge of the Chipko movement helped set off the beginning of the Hugging Trees movement in the United States. For better or for worse, you can make your own judgment as to whether that made sense. But it was interesting to see the traveling of ideas from Sunderlalji's little village and the villages up in Uttarakhand to places all over the United States, especially to California. He was a great man. The person that I've done most of my work with, oddly enough, over the last 50 years is in the South. It's Krishnamal Jagannathanji. But she was very close friends with Sunderlalji and
and his wife. And I used to hear about her meetings with him whenever she was able to go north. So I thank you for setting up this meeting today and for making it possible for us all to remember one of our great fathers. Thank you. Thank you so much, David Albert, for sharing these insightful interactions. And also, we know that nowadays, with the advent of this environmental movement, there are many unsung heroes. They are doing great service, not only for the India, but also the world, because this is a very global challenge. And West have a kind of unique kind of sensitization towards environmental concerns. But in India, we are facing a kind of deficit in that sense. Thank you so much for sharing this information. And you have also shared one important text in the chat box about Gaura Devi's Saves the Trees. And that is very, very insightful. And I we invite. wish to add that I wrote that story actually after a meeting with Chandra Prasad Bhatt. I was on a train from Ahmedabad to Mumbai, and I was being eaten by bedbugs. And so they kept me up all night until I finished the story. So homage to the bedbugs. Thank you, thank you. I request Shri Kaushal Kishoreji. Kaushal Kishoreji is a deep seeker and environmentalist. So I request Kaushalji to share some of your reflections. He has written very important articles on environmental movement, particularly on Sunderlal Bahuguna's side. Yes. शुक्रिया रणधीर भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है. थैंक यू. आज वर्ल्ड कल्चर डे है. राजीव गांधी और बहुगुणा जी की पुण्यतिथि है. तो देहरादून में मेधा ताई को उन लोगों ने आज बुला रहा. 4 बजे से उनका प्रोग्राम था, वो कल ही पहुंच गई थी वहां. रात मेरी बात हुई थी माता जी से. तो मैं ये बात बोल रहा था, बहुगुणा जी को जब याद करते हैं तो आज कहने के लिए मेरे पास तो एक ही बात है, पर यहाँ इतने सारे लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर बातें कही है. सबसे पहले तो प्रोफेसर रंजन गिरी साहब को थैंक्स कि उन्होंने सबको याद किया. वो चाहे वो कवि जी हों, चाहे वो वंदना जी हों, और वो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इस मोमेंट के, सारी बात को उन्होंने वो रखा. फिर इस सारी चीज को उस दिशा में ले जाके समेट दिया कि पर्सनल इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा मायने रखते हैं. हाँ, पर्सनल इंटरेक्शन मायने तो रखते हैं, पर ज्यादा या कम इस बात को छोड़िए. ये सब दर्जी की तरह कपड़े बुनने के लिए जो है वो माप जो करने लगे हम लोग, ये बात मैं ये बात बोल रहा हूँ. 2008 में मैंने गंगा लिखी थी, तो मुझे लगा कि बहुगुणा जी से मिलना चाहिए. हमारा उनसे पहले से मिलना जुलना था. हम लोग उनको जब भी बुलाते थे किसी प्रोग्राम में तो वो आ जाते थे, और उनको लेके आते थे टिहरी से किशोर उपाध्याय जी. तो आप सब लोगों ने उनको याद करते हुए एक बात में भूल की, अगर वंदना सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेक्स्ट जनरेशन को खोजिए, तो ये बात उन्होंने ठीक ही कहा कि वंदना सिवा उनकी नेक्स्ट जनरेशन होती हैं. पर इक्वली इम्पोर्टेंट इज किशोर उपाध्याय, जो आजकल वो टिहरी से विधायक हैं. हालांकि वो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी से इस बार उनको जीत मिली है. पर ये दोनों ही लोग उनके लेफ्ट हैंड राइट हैंड, आप समझिए. किशोर उपाध्याय को अगर आप नोटिस नहीं करते हैं तो ये बात
पर चर्चा करना बेईमानी है। उनके विषय में कोई और बात करिए तो वो मार्तंड सिंह की बात किशोर भाई याद करते हैं। मैं ये बात बोलता हूँ कि ठीक है, उनकी बात को रखे बिना इस पर कोई ईंट नहीं रखी जा सकती है, सब जो है बेकार का ही साबित होगा। तो वो कपूरथला रियासत वाले थे मार्तंड सिंह जी, उन्होंने ये बात कहा कि बहुगुणा जी का जितने सारे भाषाओं पर पकड़ था और जितनी सारे लोगों के बीच वर्ल्ड कम्युनिटीज में जो उनका अपना पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप था, सिर्फ उसी को यदि हिंदुस्तान की सरकार नॉरिश करती तो जो बाइपोलर वर्ल्ड हुआ पड़ा रहा 70s से और फिर वो यूनिपोलर हो गया, उस वर्ल्ड में जो समस्याएं खड़ी थी जिसको वो न्यूक्लियर वॉरफेयर वगैरह की बात करके प्रोफेसर गिरी ने वो बात को रखा था यहाँ अभी। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये बात सच है कि उस बात को रखने के बाद ही वो बात खड़ी होती है और वो उसके दो सिर पैर जुड़ते हैं कि बहुगुणा जी को ये सारी बात करने के लिए जिस व्यक्ति ने परसुएड किया, तो उस विषय में ट्रिब्यून में एक पूरी स्टोरी किसी ने लिखी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, पर वो विनोबा भावे और बहुगुणा जी के उस इंटरेक्शन की बात करते हैं जिसकी वजह से बहुगुणा जी वो 5000 किलोमीटर लंबी पद यात्राओं का सीरीज शुरू करते हैं जो 3-4 किस्तों में 4-5 सालों तक चलती रही। तो उन पद यात्राओं में वो उत्तराखंड के गांव में और इवन हिमालय के दूसरे क्षेत्रों में भी वो कम्युनिटीज जो है वो खड़ी हुई कि वो एक किस्म की जो पंचायतें हैं वो जगह जगह खड़ी हुई और उसमें महिलाओं का और पुरुषों का बराबर का भागीदारी आप समझिए। और फिर वो दो खेमे में लोग डिवाइड करते हैं। किसी ने चंडी प्रसाद भट्ट जी का नाम नहीं लिया, वो भी उतने ही सम्मानित फिगर है। अभी वो गांधी हाउस ने बॉम्बे में उनको चिपको मोमेंट पर पीछे बोलने के लिए बुलाया था और हम लोग यहाँ दिल्ली में प्रभास जोशी की स्मृति में व्याख्यान माला करते हैं, तो उसमें हमने पीछे उनको यहाँ दिल्ली में आमंत्रित किया था इन्हीं सब मामलों पर चर्चा के लिए। हम उनको आगे फिर बुलाएंगे, उनको वो भी बड़े यशस्वी चिपको आंदोलन के नेता रहे। पर यदि आप सिर्फ चिपको मूवमेंट की बात करते हैं तो एक खुशफहमी पालने की कोशिश करते हैं कि चिपको मूवमेंट तो उनके लाइफ का ब्राइटेस्ट पार्ट है जिसकी वजह से दुनिया भर में वो जाने गए। पर उसके जस्ट बाद उन्होंने वो टिहरी डैम वाला मूवमेंट किया जिसमें वो फेलियर साबित हुए और वो आज भी वो खड़ा रहा। तो वो जो सारी लोग बात करते हैं कि चाहे नर्मदा में मेधा जी का आंदोलन हो या उधर टिहरी में बहुगुणा जी का आंदोलन हो, फाइनली परिणाम तो कुछ भी आंदोलनकारियों के पक्ष में नहीं निकला। अब ये बात करने वाले लोग ये बात भूल जाते हैं कि जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है वो एक अहम चैलेंज है। इसको यदि आप नकारते हैं, ये सारी चीजें जो उधर डेवलपमेंट का नया सीरीज शुरू हुआ वो 62 वॉर के बाद शुरू हुआ। वो जो आज के टाइम में उधर चाइना से थ्रेट है, उधर बॉर्डर के पास जो तिब्बत का जो फॉल है, तिब्बत का यदि फॉल नहीं हुआ होता, आपको फिर वो विनोबा भावे की बात पे जाना होगा कि वो दैट वाज द फॉल ऑफ तिब्बत। उसको वो सबसे बेहतर नोटिस कर रहे थे, इस पर उन्होंने वो बात कहा। हालांकि इस मंडली के इस चर्चा के आयोजन के सीड में वो प्रोफेसर आनंद कुमार जी हैं, उस पर उन्होंने बहुत सारा काम किया। दूसरे लोग भी जो इस पर काम करने वाले लोग हैं वो इस स्वाध्याय सर्कल से जुड़े हुए हैं, ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। पर वो जो मैं बात कहना चाहूंगा कि फाइनली वो बात वहीं ले जाके खड़ी करती है। और इस पर जब ये साल शुरू हुआ तो मैं वो जनवरी में 9 जनवरी को बहुगुणा जी का बर्थडे आता है और वो इस साल आप देखिए 1 जनवरी से ही जो खबर आ रही है वो जोशी मठ से आ रही है
कि वहां दरारें फटने लगी, जमीन खिसकने लगा। तो ये साल ऐसा है कि आपको हिमालय चेतावनी दे रहा है, और यहाँ दिल्ली में पिछले 1 महीने का मौसम जो है वो भी यहाँ भी एहसास करा रहा है कि इस साल आप देखिए कि मौसम किस तरह बदला बदला सा है। तो बहुगुणा जी जो है उनको यदि याद करते हैं तो एक और बात को यदि याद नहीं करते हैं, तो वो बात ये है कि जो उनके टेरी डैम मूवमेंट में फेलियर की बात है कि उसमें सरकार के लोगों के साथ मिलके डैम कंपनी के लोगों ने इनके कोई 17-18 लोगों को मरवा दिया। वो पूरी बस खाई में गिर गई और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। मैं ये बात बोलता हूँ कि उन आत्माओं को तब तक, जब तक न्याय नहीं मिला है, तब तक हम लोग कोई आगे की बात करें तो ये सारी बेईमानी है। पहले उनको जो है ना, जो रीपे करना चाहिए। यहाँ दिल्ली में उपहार सिनेमा वाले मामले ने एक मॉडल इस मामले में एक्सीडेंट को लेके जो है वो पेश किया है। मैं ये बोलता हूँ कि उससे कम टिहरी डैम वाले मामले में भी यदि कोई बात करते हैं तो वो बेईमानी की बात होगी। तो इस बात को भी हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कोई इसमें यदि जो लोग काम करने वाले हैं उनको कोई यदि वॉलंटियर करते हैं तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, और इस पैनल में ऐसे लोग जुड़े हैं कि जिनके करने से उनको कुछ बेहतर मदद मिलती हो। पर ये मैं आज बात खत्म करूं उससे पहले मुझे एक ही बात और कहना चाहिए कि वो उत्तराखंड में जो चल रहे हैं बातें, तो उसको लेके वो जो 4 धाम वाला रास्ता है और वो जो बातें हैं, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इस पर जो हिमालयन ट्रांस हिमालयन डायलॉग्स हैं उसकी बात उधर चीन में भी वो करने वाले लोग हैं, प्रोफेसर हैं ऐसे जिनकी इंडिया में भी यहाँ उनको बुलाया था। क्या नाम है, प्रोफेसर हु के कुछ नाम ऐसे हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो उस पर जो है एक ऐसा बनाना होगा कि वो जो अमेरिकन लोग जिनके बारे में दलाई लामा जी ने जो है क्वेश्चन उठाए हैं उसका जवाब वो क्या देते हैं। आपको जवाब तो लेने को जो है वो सामने खड़ा तो होना पड़ेगा उनके। जो लोग ये इस मामले में कंट्रीब्यूट करते रहे, ऐसा नहीं है कि आज लोग नहीं है, हम सब लोग उनकी मदद करें। और ये बात है कि हिमालय में सवाल खड़ा है और वो ही सवाल मैदान के लोगों के लिए भी संकट खड़ा करता है। तो वो जो कंटेम्पररी इशू की बात कर रहा है कि एक बार फिर हम सब लोगों को वहीं हिमालय में उसी जगह पहुंचा दिया है जहां पर जो है एक बार विचार करने को विवश करता है। हम यही बात करेंगे कि कह के अपनी बात खत्म करेंगे कि इस विषय में कुछ सार्थक प्रयास हो तो वो बहुगुणा जी को बेहतर श्रद्धांजलि होगी। मैं उनके साथ 2008 में इलाहाबाद और मेरठ की 10 दिनों की यात्रा पर रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि मेरी वो जो 2008 में गंगा वाली बुक है उसमें 2 चैप्टर में मैंने उनकी बात को, स्पेशली वो जो डैम मूवमेंट है उसको फिगर आउट किया है। और उन्होंने इस बात पर, वो ओलोफ एलेक्जेंडरसन की एक किताब है द लिविंग वाटर, जिसमें वो जर्मन नेचुरलिस्ट जो विक्टर सोबर्गर था उसकी बातों पर उसने वो पूरा बुक फोकस किया है। तो उसकी भी बहुगुणा जी बहुत सीरियसली बात करते थे और वो उसको एक किस्म से अपने गुरु के तौर पर मानते थे। तो ये सारी उनके साथ जो है मेरे इंटरेक्शन से मुझे सीखने समझने को मिला। पर इस बात को लेके वो जो लोग उनके साथ उस युद्ध उस सत्याग्रह में सहयोग करने के वजह से मारे गए, इनको लेके वो सबसे ज्यादा चिंतित रहते थे। यहाँ इन्होंने उन लोगों को मदद मिले इसके लिए दिल्ली में वो 8 सालों तक अभियान चलाते रहे। उसके बाद तो मेरा उनसे मिलना जुलना हुआ, तब मुझे पता चला, वो सारी बात उन्होंने मुझे बताया। और इस विषय में जो सबसे पहला काम है वो 2-3 महिला पत्रकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। 93 में मधु कीश्वर ने वहां टिहरी जाके बहुगुणा जी का एक इंटरव्यू किया था जिसमें उस मामले पर उन्होंने खूब खुल के चर्चा की है। और एक किताब इधर पंजाब से कुछ लोगों ने छापा था जो बहुगुणा जी
सबको मिलते थे तो देते थे वो किताब, उस किताब में भी उस पूरी इंटरव्यू को छापा है। तो उसी से वो मुझे मिला, पर वो बाद में मिला। इस विषय में मेरी कई 7-8 राउंड में बहुगुणा जी से खुद रूबरू इस मामले पर चर्चा हो चुकी थी, और मैं समझता हूँ कि उनके जीवन की जो सबसे बड़ी चिंता थी, यदि उस बात को आप कहिए, तो और सारी बातों को लेके भी चिंता थी। जैसे आखिरी टाइम में वो किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं हॉस्पिटल में होते हुए भी, तो वो उनको बहुत सारी बातों को जो देश दुनिया में चल रही होती थी उनको लेके चिंता होती थी, पर इस बात की जो चिंता थी वो बाकी सारी चीजों से कहीं ज्यादा गहरी थी, जो उनसे रूबरू इंटरेक्शन से ही पता चलता था। और ऐसा था कि वो पता चले बगैर भी नहीं रहता था, इतनी वो अहम बात थी। वो सभी से यही बात करते थे सबसे पहले। तो मैं इसी ठीक बात है। के साथ बात को विराम दूंगा और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि एक बार पुनः अर्पित करता हूँ। इस दिशा में कुछ और बेहतर काम हो, इसके लिए अपील भी करता हूँ। शुक्रिया रणधीर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी। आपने तो जो अंतिम समय जिस तरह से जो समय था सुंदरलाल बहुगुणा का, जिसमें वो फार्मर्स मूवमेंट के को सपोर्ट करने की दिशा में उनकी जो भूमिका रही और उन्होंने जो बयान दिया, उनकी उससे स्पष्ट होता है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। टिहरी डैम का जो मामला उठाया, और हम लोग बात तो करते हैं चिपको मूवमेंट की, लेकिन टिहरी डैम का जो मूवमेंट है वो ज्यादा डिस्कशन में इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि वो डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट का डिबेट हो जाता है। So when we talk, it is very difficult to talk about Tehri Dam, particularly those so-called modernist groups. लेकिन इस दिशा में जो है खुद सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो बात था कि एसके रॉय का जो कमेटी है उनका रिकमेंडेशन था टेहरी प्रोजेक्ट के अधीन, और हम ऐसे कोई भी डेवलपमेंट ना करें जिसमें लोकल पीपल, इंडिजिनियस पीपल का पार्टिसिपेशन, उनका कंसेंट लेना ना हो। तो खैर हम लोगों के पास उसके बाद 2013 का जो लैंड एक्विजिशन था वो वापस हो गया उसी कॉन्टेक्स्ट में। तो टेहरी मूवमेंट के जो आयाम है, मतलब फिलोसफिकल आयाम, और 2013 का लैंड एक्विजिशन का हटना, तो कई मूवमेंट कभी भी असफल नहीं होता है। मूवमेंट कुछ सवाल देता है और जिस सवाल के साथ जनता हमेशा मूवमेंट के साथ अपने को इंगेज करती है। तो टेहरी डैम का जो फेल्योर था, उसके बाद से जिस तरीके से फार्मर मूवमेंट, जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन के खिलाफ मूवमेंट, हम दोनों मूवमेंट में सफल रहे। तो हमें इस दिशा में भी मूवमेंट को, और नर्मदा वैली का डैम प्रोजेक्ट को भी उसी दिशा में समझने की जरूरत है। तो मैं आदरणीय राम मोहन राय जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य दे। उसके बाद शिवानी भट्ट, who is from Garhwal region, and she will also reflect some of her reflections. Yes, Ram Mohan Rai ji. श्री रणधीर कुमार गौतम जी ने न केवल बहुत अच्छा आयोजन किया है, बल्कि बहुत ही बेहतर ढंग से वो इसका संचालन भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे दीदी निर्मला देशपांडे जी के साथ कई बार सुअवसर मिले कि मैं बहुगुणा जी और उनके परिवार के दर्शन करूं, और इसी अंतिम बार मुझे 25 अक्टूबर 2020 को उनके शांति नगर देहरादून जाकर दर्शन करने का मौका मिला। बहुगुणा जी स्वस्थ थे, पर कुछ याददाश्त में कमी थी, पर उनके पास एक बहुत अच्छा
एक सहयोगी था, जो सहयोगी नहीं था, अपितु जिसने उनके पूरे आंदोलन में हर तरह से सहभागिता की थी। मेरा अभिप्राय उनकी पत्नी विमला बहुगुणा जी से है। मैंने माता जी से पहला सवाल किया कि माता जी आप कैसे मिली बहुगुणा जी से, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि सर्वोदय आंदोलन, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर मैं गीत गाती थी, तन हो मेरा स्वदेशी, मन हो मेरा स्वदेशी, मर जाऊं तो भी होए मेरा कफन स्वदेशी। ये गीत बहुगुणा जी को बहुत प्रिय था और फिर उनके साथ में काम करती, पर बहुगुणा जी राजनीति में काम करते थे। जब विवाह का प्रस्ताव आया तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप राजनीति को छोड़कर गांधी जी के काम करोगे तो मैं आपसे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करूंगी। और बहुगुणा जी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और वो ताज जिंदगी गांधी जी के काम में लगे रहे। अंत में मैंने विमला जी से पूछा कि आपने तो पिताजी के साथ बड़ा अन्याय किया, वो राजनीति में थे, खूब काम करते थे, सक्रिय थे। अगर वे राजनीति में रहते तो वे कोई ना कोई उच्च पद पर होते, राज्य के मुख्यमंत्री होते, केंद्रीय सरकार में कोई मंत्री होते। तो ये बात सुनकर बहुगुणा जी भी कुछ मुस्कुराए और माता जी ने कहा कि बेशक होते, पर जो मुकाम, जो काम की संतुष्टि उनके अब काम से है वो शायद ना होती। मैं जो आज का विषय है उसी को करते हुए कहूंगा कि यह आंदोलन जिसने पूरे विश्व में छाप छोड़ी। अभी अभी हम डेविड साहब को सुन रहे थे कि वे अमेरिका से अपनी बात रख रहे थे और जो विषय था जो आज रणधीर कुमार जी ने रखा है उसी विषय पर अपनी बातचीत कर रहे थे, गांधी की चर्चा पर बातचीत कर रहे थे। तो जो तिलड़ी आंदोलन चला, तिलाड़ी आंदोलन 30 मई 1930 को जो राजशाही के लोगों ने निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों पर गोलियां चलाई, अनेक लोग मारे गए, उन्हीं को याद करते हुए जो शहीदी दिवस मनाया जाता था, उसी की एक कड़ी थी यह आंदोलन। मैं बहुगुणा जी के वह पुस्तक में कुछ पैराज को उद्धृत करना चाहूंगा जो उन्होंने लिखे, पर्वतीय क्षेत्रों का विकास और वन नीति। बहुगुणा जी ने कहा, वन विभाग ने अभी तक चीड़, देवदार, केल आदि व्यापारिक वनों का ही लेखा जोखा रखा है। इनके अलावा भी कई ऐसी वन उपजे हैं जिन्हें बाजार तक पहुंचाना संभव नहीं है। अब तक वनों की आवश्यकता राज्य की आमदनी बढ़ाने और मैदानी क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए ही महसूस की जाती रही है, परंतु हम वनवासियों के लिए वे हमारी आजीविका और अस्तित्व के आधार रहे हैं। उसकी उपज से गरीब आदमी अपनी छोटी आमदनी में वृद्धि कर सकता है। यह हमें ईंधन देकर सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में छाया से ठंड प्रदान करते हैं। एक मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, वन श्रमिक सहकारी समितियों की स्थापना वनों की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के अलावा, मैं इस पर विशेष ध्यान चाहूंगा,
समाजवाद की दिशा में एक निश्चित कदम है। ये ठेकेदारी शोषण की समाप्ति के साथ साथ लोकतंत्र को नौकरशाही फाइलों से मुक्त कर जन पंचायतों में ले आएगी। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ये है कि प्रशासन और व्यवस्था में लोग अधिक से अधिक भाग ले सकें। हमारे जो राष्ट्रीय आजादी के मूल्य थे, जिनको हमने भारतीय संविधान के प्रियम्बल में कहा लोकतंत्र, और बाद में हमने समाजवाद को भी जोड़ा, ये दृष्टि बहुगुणा जी के जो उन्होंने 1968 में लेख लिखा पुस्तिका के रूप में, वो विचार उस समय भी थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुगुणा जी की दृष्टि कोई ऐसी दृष्टि नहीं थी कि जो सिर्फ पर्यावरण तक थी, जैसे कि मेरे पहले वक्ता ने कहा, पर्यावरण तक नहीं थी, अपितु जो हमारी राष्ट्रीय आजादी के मूल्य थे, जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, उनको भी बहुत अच्छे ढंग से संदर्भित करने का एक बेहतर काम बहुगुणा जी ने किया। आज बहुगुणा जी की दूसरी पुण्यतिथि है और मैं समझता हूं कि उनके स्मरण करना, उनके काम को याद करना, उनके काम को विकसित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास करना आज की जरूरत है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, अनंत गिरी जी ने, डेविड अल्बर्ट जी ने, कौशल किशोर जी ने, तोमर जी ने, हमारे मित्र खैरनार जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अलग अलग विषयों पर अपनी बात कही है। मैं अपनी बात को ज्यादा तो नहीं करूंगा क्योंकि समय भी थोड़ा है, समय बढ़ रहा है। इतना जरूर कहूंगा कि बहुगुणा जी, उनकी पत्नी विमला जी, उनके जितने भी सहयोगी रहे, चाहे सैलानी जी हो, चाहे देव सुमन जी हो, चाहे वे सब लोग हों, चाहे जिन्होंने 1930 में बलिदान दिया वो लोग हों, जो बस के दुर्घटना के नाम पर जिनकी हत्या कर दी गई, वो पंकज हो जिनके ऊपर आरी चली, वो बालक हो जो पेड़ से एक जंगल के बंदर की तरह कूदता चला गया और उसने वृक्षों की रक्षा की, वो तमाम लोग जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया, जो आज भी चाहे वो नर्मदा में हो, चाहे पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहां जहां भी काम कर रहे हो, हम सब उनके प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं। और आज की इस पुण्यतिथि पर उन तमाम शहीदों को, दुनिया भर के तमाम शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री रणधीर कुमार जी गौतम का पुनः पुनः आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राम मोहन राय जी। अब मैं शिवानी भट्ट जी से निवेदन करूंगा, हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि 15 मिनट और ले लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और कुछ हमारे साथी और भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट शिवानी भट्ट। शिवानी भट्ट जी का परिचय है कि ये गढ़वाल जी से बिलोंग करती हैं और इन्वायरमेंट मूवमेंट पर पेशे से ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज से में पढ़ा रही हैं। तो शिवानी भट्ट जी, I request you to please share your reflections. Firstly, I hope I'm audible. Yes. Firstly, I think this entire discourse has been extremely enriching for me. My area of research revolves around folk songs and how they look at this intersection between nature, orality, and gender. When we talk about the region of Garhwal, and figures like Gaura Devi and Sunderlal Bahuguna are, revered in the region, and still the legacy of their work resounds. And I think one thing that was there in today's conversation, I think Professor Albert talked about it, and that was how Professor Bahuguna talked about development in the presence, and his idea of development was very spiritual development, as against
sustainable development or development for the future. When I started looking at folk songs and when I started looking at especially folk songs of protest, one common idea that resonated was how today what we face and what we think for posterity needs to have this delicate balance, which needs to preserve ecology, which needs to have also foregrounding of human needs. And when I started looking at women's folk songs in particular, one thing that I constantly went back and forth with was this idea that preservation can happen in a very democratic approach where both men and women come together, although the repercussions of environmental damages or any oppression hit women the most. So there is always this unfair level of, I would say, subjugation and the disadvantages that hit women the worst. One folk song I wish to particularly talk about, and then I'll again circle back to the legacy of Sunderlal Bahuguna, is how in this particular folk song, women of the region talk about and lament how they used to eat the berries of the oak trees. Banju ke ped, the song is called, and how their entire life revolved around the environment, which now they lament no more exists. And to connect it to Sunderlal Bahuguna's idea of how development and the idea of sustenance needs to come from a very community dialogue, needs to come from within, from the care of this interbeing that happens within a community with the environment. I'm keeping it very brief, but I think this is my 2 cents on the whole thing. Thank you. Thank you so much, Shivani Bhatt. Thank you. I request respected participant to please be with us at least for 10 to 15 minutes. I request Sandeep Sahuji to also share his reflections. मैं सबको नमस्कार करता हूं। मेरा नाम सुदीप साहू है और मैं गाजियाबाद से हूं। आप मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। बस। आज सुंदरलाल बहुगुणा जी की द्वितीय पुण्यतिथि है और ये बात जान करके मुझे इस पेज पे आने की जरूरत महसूस हुई। राम मोहन राय जी ने इसको शेयर किया था, मैंने तुरंत इसका जूम लिंक लिया। आज हम लोग गाजियाबाद में विजय पाल बघेल हैं और उन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर के गाजियाबाद में काफी काम किया। उस वक्त उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी और विमला जी को गाजियाबाद में बुलाया था और वो यहाँ आए थे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी IIMT है गाजियाबाद, उसके सभागार में एक कार्यक्रम हुआ था एनवायरनमेंट पे। उस कार्यक्रम में मैंने सुंदरलाल बहुगुणा जी और विमला जी इन दोनों का जीवन वृत्त पढ़ने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। मैं यही बताना चाहता हूं कि पर्यावरण पे बहुत काम हुआ और लेकिन आज की जो सरकार आई है वो पर्यावरण के कानूनों का विध्वंस करके निर्माण कार्य कर रही है। 4 धाम यात्रा की मांग किसी ने नहीं करी, जनता ने मांगा नहीं उसको, लेकिन जबरन उसको 4 धाम यात्रा का प्रोजेक्ट ला करके पेड़ों को काटा जा रहा है और इसका पर्यावरणीय प्रभाव इतना जबरदस्त होगा कि जनता भोगेगी इसको। बस मुझे यही बात कहना है। पर्यावरण अगर सस्टेनेबल हो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है कि विकास अंधाधुंध हो रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं वहां पे, 9 हेलीपैड बने हुए, उनकी क्या कहते हैं थरथराहट की आवाज जो है वहां के वातावरण को अशांत कर देती है। जानवर वहां पे भागते हैं उसकी आवाज सुन करके, लेकिन किसी को वो सुनाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक दिखावटी विकास दिखाई दे रहा है। जोशीमठ की कोई खबर आजकल टेलीविजन चैनलों पर नहीं दिखाई जा रही है, जबकि वहां पे कितने घर जो है दरक गए, अच्छे अच्छे घर टूट गए लोगों के, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। और आंदोलनकारियों के साथ सबसे बड़ी दुख की बात होती है उनके साथ जनता जो है वो अपना पीछे से फायदा उठा लेती है और पर्यावरण के आंदोलनकारियों को ऐसे ही छोड़ देती है। वो बेचारे आंदोलन करते करते थक जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जनता जो है
अगर साथ दे तो निश्चित रूप से हर चीज सफल हो जाएगी। तो मुझे यही कहना है। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद. I request Professor Gyan Gului to also share some of his reflection. फिर Minati Pradhan ji and then others. Yes. Yes, thank you very much. It was very interesting, of course, and the intervention were very rich. Well, I was wondering about the question, perhaps, which could be added to the contributions which have already been exposed. That is, how is the relationships between some theological movements, for instance, and the position of God and of divinity and the protection of environment. That is, whether there is an influence, whether there is a direct connection or not. It is because we see in Europe that there is a growing tendency to the connection between protection of environment and protection of the creation. And therefore, I would like to ask whether there is something similar in the Chipko movement or whether it is at the basis, at the very basis of the Chipko movement. Thank you very much. It was really very, very interesting. Thank you. Thank you, Professor Gyan Gului. Sunderlal Bahuguna was very interested in Garhwali devotional song, and there is a song called Vishnu Param and Mahatma Gandhi's song. So he has a deep a kind of interest towards a spiritual theological song, and that's the very nature of environmental movement, that they love singing song, and that is a way of inculcating environmental consciousness. So the song we have played in the very invocation is also a part of that movement. I request Minati Pradhan ji to also share some of her reflections. Hello, am I audible? Yes, yes. Yeah, thank you. Good evening, everyone. First, I would like to thank all the speakers and discussants, such eminent persons who share their different perspectives and aspects and their personal stories. So thank you so much. One thing I want to say from the Chipko movement, what we learn, it is like the best collective mobilization of women for a cause, which also brought about the changes in attitude regarding their own status in the society. In the Times of India evoke page, Professor Haripriya Rangan writes, how the Chipko movement changed the world, the change world's vision. It was an inspiration to many. If having said that, I just want to share a little bit things about Bangalore. Here, when the local bodies wanted to cut the trees for the road widening project, there were groups. Even many times we also went and just holding creating the human chains and holding the placards, and sometimes also sitting around the trees. Actually, made their decision. They rethink their decision, and some of the trees were protected. So what we learn here is protest is a crucial and effective force for social change. Anyhow, somewhere we have to protest. And the second thing is, the important message is to involve the community in the forest conservation efforts or for the climate protection. Even if you take in Odisha, everybody must be aware of POSCO and that land grabbing things in Jagat Singhpur district and all. So everywhere the community involvement creates, it plays a very important role, according to me. So, means if anybody can say what are the next steps we can take to challenge these contemporary things. Everywhere you see the order is passed, the next day in the paper you see so much of trees being cut. So what can be done which will work effectively, if anyone can answer? Thank you. Thank you for that. Any other respected participant who want to share anything? Although we have very limited time. So final words from Professor Ananta Giri. As he's taking some time.
So I request Minati Pradhan ji to offer the vote of thanks. Thank you. Thank you so much. Hello, 1 minute. Yes, Minati Pradhan ji, just wait a minute. Yes. So I was able to, so unmute. So thank you for our journey together. And the question that Minati has posed is very important in the sense that, and that is the spirit of Sunderlal ji, that what we do today, and the answer lies in mobilization. And this mobilization is both collective as well as self. And if there is a satyagraha, for example, a new kind of Chipko movement, even if one person, embraces the tree, and so it would have an impact. Thank you. Yes, Minati Pradhan ji. Yeah, thank you. I, Minati Pradhan, on behalf of Swadhyasa Chakra and the Vishwaneedam Center for Asian Blossoming, would like to thank our today's speakers and discussants like Professor Kumar Giri, Professor Jayant Singh Tomar, Dr. Suresh Khairnar, Professor David Albert, Mr. Kaushal Kishore ji, Professor Ram Mohan ji, Professor Shivani Bhatt, and Mr. Sudip Sahu ji, Professor Ganlu ji for their discussion and for their participation. Thank you all for putting your insight to our discussion. Thank you all. I would also like to thank all our Facebook platform users and Zoom users for being with us in this journey and learning with us. And please pardon me if I've forgotten anybody's name personally. But Thank you. And yes, I also feel a great sense of gratitude to Professor David Wills and David Albert. We will invite you, sir, in our coming dialogue to discuss more about the sadhana of Sunderlal Bahuguna and your work. Thank you so much. And we look forward for your kind participation in coming dialogue and discussion. We invite dialogue on every Sunday. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Jagat.